Hello everyone. Under the reading campaign week 9 activity, the theme based reading activities are listed. It is given that theme based reading activities can be conducted throughout the year, such as we can read books related to Mahatma Gandhi, Swachh Bharat Mission, Ek Bharat Shresth Bharat, Constitution of India, fundamental duties, national holidays, sports, famous players around the world, Olympic games and tournaments, books related to art and culture and festivities, books related to Indian martyrs, etc. So keeping these examples in mind, I have read few books of our famous leaders Gandhiji, Tulsidas and sports person P.T. Usha. So this is only an example, children. If you want to read some other books related to the given examples, you can read and make a video. So I have read books in English and Hindi as well. I hope you will like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel and give a thumbs up to my video. Let's start the video. APJ Abdul Kalam. Abul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam is a scientist turned executive head. He was born on October 15, 1913 at Rameswaram in Tamil Nadu. He studied at Schubert's High School in Ramanathanpuram. He graduated in science from St. George's College at Trichy. He did his DMIT in Aeronautical Engineering at MIT Chennai. Kalam joined Hindustan Aeronautics Limited at Bangalore as a trainee. Later, he joined the DTD and P as Senior Scientific Assistant. At ADE, he served as a Senior Scientific Assistant heading a small team that developed a prototype hovercraft. As Director of DRDO, he worked on the Integrated Guided Missile Development Program. Under Kalam's guidance, India successfully launched many missiles like Trishul in 1985, Prithvi in 1998 and Agni in 1989, which earned him the title Missile Man of India. On November 25, 1999, he was appointed as the Principal Scientific Advisor to the Government of India. He was elected the President of India on July 25, 2002. So children, this was a small story about APJ Abdul Kalam, who was our president also. Now we will read about our Papu Mahatma Gandhi. Everybody knows who the Mahatma Gandhi was. Let's read. Let's read a small introduction of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is called the father of the nation. He was born as Mohandas Karamchand Gandhi on October 2, 1869. He had an orthodox upbringing. At the age of 13, he was married to Kasturba. He went to England to study law. After returning to India, he began to practice law. He went to South Africa for legal work in 1894. There he fought for the right of Indians. After his return to India, he joined the freedom struggle. He headed a protest against the exploitation of the indigo workers in Champaran. Gandhi started the non-corporation movement in 1920. He called off the movement because of the violent incident at Chora Chori. He also launched the civil disobedience movement after breaking the Salt Law in 1930. In 1942, Gandhi exhorted Indians to do or die, employing any measures they saw fit while opposing the British.
On August 15, 1947, India attained independence under his leadership. His life came to an end on January 30, 1948, when he was assassinated by Nathuram Godse. So this was the small story about Gandhiji. Now we will read about Mrs. Indira Gandhi. Indira Gandhi was the first lady Prime Minister of India. As the Prime Minister, she put India on the path of progress. She was born in 1917 to Jawaharlal Nehru and Kamala Nehru. Indira was taught at Somerville College, Oxford. After the British left India, her father Pandit Jawaharlal Nehru became the Prime Minister of India, and Indira gained a lot of political experience while touring with her father. During the Prime Ministership of Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi became the Minister of Information and Broadcasting. She succeeded Lal Bahadur Shastri after his unexpected demise. As the Prime Minister, Indira showed her political skills and abilities. She led India to triumph against Pakistan in 1971. In the 1977 general elections, her party was defeated. She came back to power in 1979. In 1984, she became unpopular among the Sikhs after the Operation Blue Star. She was shot dead by her own bodyguards the same year. So children, by this text we knew about Mrs. Indira Gandhi. Children, you can read any of the leaders from this book as I did. So children, we read about few of our leaders, and similarly you can also read about your great leaders, and you can make small videos and send to your teachers. Now we will read Hindi texts. Students, here I am giving you the text which I read in this video. You can read the text from here itself. Otherwise you can read from any other book also, or you can download the text from the net as well. First of all, I am reading this Hindi book तुलसीदास. कौन थे बच्चों तुलसीदास? तुलसीदास वो महान कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और रामचरितमानस हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है. तो बच्चों, मैं ये अध्याय इस पुस्तिका में से पढ़ रही हूँ. अध्याय 6, काशी में तुलसीदास. जैसा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस पर 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने अपने इस कार्य को कुछ वर्षों बाद काशी में ही समाप्त किया होगा. चित्रकूट में उन्हें लिखने की जागृति मिली तथा अयोध्या में उन्हें लिखने के लिए अनुकूल वातावरण मिला. काव्य में पहले 3 खंड अध्याय सबसे बड़े, सबसे आसान तथा सबसे उत्तम थे. इन अध्यायों की भाषा, वर्णन करने का ढंग, वो संस्कृति जो कि उसमें झलक रही है, वो वातावरण जिसके अंतर्गत यह कथा लिखी गई है तथा इसके इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है, वह है अयोध्या, जिसे कि अवध राज्य से के नाम से भी जाना जाता है. जिन कारणों ने तुलसीदास को अयोध्या छोड़ने के लिए उकसाया, जिनको कि वे इतना पसंद करते थे, यह कहना कठिन है. इस बारे में कई अनुमान भी लगाए गए हैं कि उनका दिमाग समुदाय से संबंधित पक्षपात को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे स्थान पर जाने का निर्णय लिया.
समुदाय से संबंधित कारण अचानक ही उनके विरुद्ध हो गए। यह भी संभव हो सकता है कि राम के नगर के प्रति जो उनका गहरा लगाव था, उसके रहते वे योगियों तथा पुजारियों के जीवन को पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों, ये छोटा सा विवरण मैंने तुलसीदास जी के विषय में पढ़ा है। आप भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों के बारे में उनकी जीवनी पढ़कर छोटी सी वीडियो बना सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और अपनी शिक्षिका को या शिक्षक को भेज सकते हैं। यदि आप विद्यालय आ रहे हैं तो विद्यालय में भी आप इसका पठन कर सकते हैं। बच्चों, आपको पढ़ने का अभ्यास निरंतर करना है और डेली ही आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। अब इसी सीरीज के अंतर्गत मैं अब पढ़ूंगी पीटी उषा के विषय में। पीटी उषा कौन है? पीटी उषा एक बहुत अच्छी धावक है और हमारे देश की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। अब हम पढ़ते हैं पीटी उषा। तो देखिए, मैं ये यहाँ से पढ़ना आरंभ कर रही हूँ। अध्याय 3, साक्षात्कार। इस अध्याय में उनसे लिए गए साक्षात्कार के कुछ अंश दिए गए हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछता है और वह उनके उत्तर देता है। आपने खेलों से संन्यास क्यों ले लिया? मैं पिछले 20 वर्षों से दौड़ रही हूँ। मैंने अपना खेल जीवन 1977 में शुरू किया था। मैंने कुछ वर्षों के लिए 1990 में विदा ली थी और 1993 में फिर वापस आ गई। जब मैं वापस आई तो मेरी इच्छा थी कि मैं ओलंपिक पदक जीतूं। अपने पूरे खेल जीवन में मैंने जो भी चाहा पा लिया, लेकिन अभी तक ओलंपिक पदक नहीं जीत सकी थी। यह बात मुझे लंबे समय से चुभ रही थी। यही वजह है कि अपने बेटे के जन्म के बाद मैं फिर खेल के मैदान में आ गई। लेकिन जब मैं 3 साल बाद वापस आई तो मैं कुछ स्थूलकाय हो चुकी थी। इसलिए अपना वजन घटाना मेरे लिए जरूरी था और कठिन भी था। लेकिन खेलों में दोबारा वापस आने पर लोगों ने मुझे परेशान किया और चैन नहीं लेने दिया। मेरे दोबारा दौड़ना शुरू करने की उन्होंने आलोचना की। मुझे ऐसा लगने लगा मानो भारत में 28 साल की उम्र में दौड़ना कोई अपराध हो। लेकिन अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से मुझे प्रोत्साहन मिला। यूरोप के देशों में खिलाड़ी 40 साल की उम्र में भी दौड़ते हैं। अब मैं किसी अच्छे कोच के प्रशिक्षण लेना चाहती थी, इसलिए राष्ट्रीय शिविर में मेरे लिए कोई प्रशिक्षक नहीं था। मैंने अकेलापन महसूस किया। अंत में मेरे लिए बंगलौर के एक प्रशिक्षक आए। मुझे दुख हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी तकनीक बदलने की कोशिश की। इससे मुझे बहुत गुस्सा भी आया। अपने विशेष और अनूठे अंदाज में मैं कई साल से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वे मेरी तकनीक बदलना चाहते थे। मैं समझ गई थी कि उनके तरीके मेरे अनुकूल नहीं होंगे। मैंने उनसे यह बात कह भी दी। मैं आज भी यह मानती हूँ कि अगर आप किसी की तकनीक बदलना चाहते हैं तो शुरुआती वर्षों में ही ऐसा करना चाहिए। जब खिलाड़ी पुराना हो जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया और मुझसे कहा कि मैं वजन के साथ उछलूं। कूदते समय मुझे अपनी टांगों को क्रॉस भी करना था। मैंने पहले बिना वजन के घास में कूदने की कोशिश की, लेकिन मैं प्रशिक्षण के दौरान गिर गई और एक घुटने में चोट खा बैठी। तो बच्चों, मैंने पीटी उषा से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पढ़ा है। आप इस पुस्तिका को पढ़कर भी अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी और खिलाड़ी के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास यही पुस्तक उपलब्ध थी तो मैंने यही पुस्तक अभी आपको पढ़कर सुनाई है। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी बहुत ही प्रसिद्ध मराठाओं के नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। शिवाजी का जन्म और बचपन। मध्यकालीन संतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिवाजी को भगवान ने लोगों के कल्याण के लिए धरती पर भेजा था। वे एक आदर्श पुरुष थे। मुसलमानों की लंबी तानाशाही और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो भी हिंदू शासक बच गए थे वे किसी न किसी मुस्लिम शासक के गुलाम थे। उन्होंने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया था, जिन्हें काफिर समझा जाता था। छत्रपति शिवाजी के द्वारा स्थापित एक छोटा सा राज्य था
जिसे हिंदवी स्वराज हिंदुओं का संप्रभु राज्य के नाम से जाना जाता था। यह राज्य उत्तर पश्चिम में अटक तथा और पूर्व में कटक तक फैला हुआ था। यह उस समय भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे शांभाजी की मृत्यु के बाद उनके प्रधानमंत्री या पेशवा उस राज्य के वास्तविक शासक हो गए। पेशवा और अन्य मराठा सरदार जैसे ग्वालियर के शिंदे, बड़ौदा का गायकवाड़ और इंदौर का होलकर ने मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में अपना काफी योगदान दिया। भारत का इतिहास मराठों के इतिहास के बिना अधूरा है। उसी तरह मराठों के इतिहास शिवाजी के बिना अधूरा है। वास्तव में शिवाजी मराठा शक्ति के केंद्र थे। शिवाजी अपने समय में लोगों के लिए गौरव और प्रेरणा के स्रोत थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए वे प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। तो ये बच्चों मैंने थोड़ा सा अध्याय महाराजा शिवाजी के बारे में पढ़ा है। आप इस पुस्तिका को पढ़ सकते हैं और रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप धीरे धीरे 1 महीने तक पूरी पुस्तक पढ़ें और निरंतर अभ्यास करते रहें। यही आपकी सफलता की कुंजी है बच्चों। बहुत रीडिंग करना बहुत आवश्यक होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा रीडिंग करते रहें, कुछ ना कुछ रीड करते रहें, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे किसी रीजनल लैंग्वेज में हो, पर रीडिंग बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं अब वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को और रीडिंग करते रहना। बाय बाय बच्चों।